Should I start the session? Please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Before I start the session, I would like to ask you a few questions. Do you know the use of let, let? Let? When do we use it? आपण लेटचा वापर करत असतो आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये. सो लेटचा एक्झॅक्टली कधी वापर करायचा? Let me know. Let me check. लेट मी नो, लेट मी चेक. एखाद्या वेळेस ते सेंटेन्सेस झाले आपल्याला बरोबर. असं सांगायचं असतं की हे दॅट आर एका सेंटेन्सेस. आय नीड टू नो अबाउट द युसेज. या टेल मी देवेनी मॅम. मला करू द्या ओके. किंवा व्हेरी गुड. करू देणे Whenever किंवा you एक want to ask for, परमिशन घेतो आपण. yes. Whenever you want to ask for the permission informally, in that case you can use let. Whenever you want to go for the formal permission, in that case you will use allow. For example, allow me to go, allow me to speak, allow me some time. So whenever you're talking to your boss or any of the colleague, in that scenario, in that case you will use allow. But if you're talking to your friend, neighbor, or any relative, you need not to be formal in that situation, so you can use let. Have you got the clarity? Okay. Yes. Now I'm going to share my screens so that you'll be able to understand the structure of let, and we will see some examples. First of all, we will see some Hindi sentences, and you will have to translate these sentences into English. Give it a try, even if you get wrong, that is all right. But at least you will understand that which are the problems which you are facing while constructing sentences, and when we will study this topic, you will get the clarity that where you have to improve, and we will again reframe these sentences, and we will check your answers. Okay? Have you got the clarity? Yes, ma'am. Okay. So the first sentence here is वो मुझे बोलने नहीं देते. Could you please translate this into English? Who will try? They cannot speak me. Okay. They cannot. Could you repeat? And try to speak a bit louder because your Speak voice me. is not audible. They cannot speak me. Okay. They cannot speak me. That is the answer of Deveni ma'am. Sheetal ma'am, would you like to give it a try to this sentence? To this sentence? Sanjana ma'am? Right. They Let's do move. not speak me. Could you repeat? I could not hear you. They do not speak me. They do not speak me. All right. Again, next sentence. Sheetal ma'am, Deveni ma'am, Sanjana ma'am. They do not speak me. Okay. Next sentence, this one. पहले मुझे अपना फोन चार्ज करने दो. How will you translate this sentence in English? ये sentences हम ले रहे हैं because अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पहले हमें उसकी रिक्वायरमेंट समझ आनी चाहिए, तभी हम उस टॉपिक को सीरियसली पढ़ेंगे. अगर आप ये सेंटेंसेस प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, इट मीन दैट लेट टॉपिक जो है वो आपका क्लियर नहीं है. एंड जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये सेंटेंसेस आप ग्रामेटिकली करेक्ट वे से और फ्लुएंटली बात कर पाओगे. इन सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करके आप फ्लुएंटली बात कर पाओगे. गॉट इट? सो जो सेकंड सेंटेंस मैंने बोला था उसका आंसर कौन बताएगा? हु विल टेल द आंसर? Charge my phone firstly. Okay. Charge my phone firstly. Okay. Ma'am, in this sentence, we are giving order to the other person. Charge my phone firstly. But here, our sentence is, पहले मुझे अपना phone charge करने दो. Right?
हम कह रहे हैं कि अच्छा, मुझे अपना फोन चार्ज करना है, हम किसी को नहीं बता रहे कि आप चार्ज कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस, जो हो गया वो हो गया, इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जियो और जीने दो। नेक्स्ट सेंटेंस, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। enjoy, तो आप रिपीट कर सकते हो, वुड यू माइंड रिपीटिंग इट? लिव, जियो और जियो, लिव एंड लिव इट। ओके, लिव एंड लिव इट। आंसर किसका था, आप नाम बता सकते हो? शीतल। ओके, शीतल मैम वाज देयर, गॉट इट। नेक्स्ट सेंटेंस, लोगों को जो सोचना है सोचने दो। हाउ विल यू से दिस? People think whatever they want to speak. ओके, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। I will not fall you. आई विल नॉट फॉल यू। ओके, मम्मी आने नहीं दे रही है, तुम लोग जाओ। हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? Mommy do not coming me, you go. Devani ma'am, could you speak a bit loudly? Mommy do not coming ओके, me, मम्मी डू नॉट you कमिंग। go. मम्मी डू नॉट कमिंग का मतलब है मम्मी नहीं आ रही है, तो हमें यहाँ पे कहना है मम्मी आने नहीं दे रही है, तुम लोग जाओ। सो अगेन यहाँ पे परमिशन की हम बात कर रहे हैं, होने दो जो हो रहा है। Mummy not यस मैम। mummy not allowing to. You will go. वेरी गुड। अभी सेंटेंस समवट करेक्ट है, पूरा नहीं। अलाउ वर्ड आया है, ये फॉर्मल हो गया, बट अगर परमिशन की बात करें तो ये भी चल जाएगा। उसकी जगह हम लेट का भी यूज कर सकते हैं, तो वो आगे हम सीखेंगे ही। होने दो जो हो रहा है। अभी हम स्टार्ट करते हैं लेट टॉपिक को। सबसे पहले हम लेट के रूल सीखेंगे, और रूल सीखने से पहले यूसेज। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको किसी की परमिशन लेनी है तो आप लेट का यूज करोगे। जब भी आप बॉस से बात कर रहे हो, कलीग से, या फिर कोई भी फॉर्मल सिचुएशन में हो, वर्क प्लेस पर हो, तो आप अलाउ का यूज करोगे। बट अगर आप इनफॉर्मल सिचुएशन में हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो, फैमिली मेंबर है, नेबर है, तो आप उस केस में लेट का यूज करोगे। अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद मैं सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपको बताती हूँ। लेट रूल्स। जब भी हम लेट के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो हम आई, वी, यू, ही, शी ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट्स का यूज हम नहीं करेंगे। हमें वी की जगह अस का यूज करना है, लेट अस। ही की जगह हिम का यूज करना है, लेट हिम, उसे। हिम मतलब उसे। लेट हर अगेन, अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे लेट हर। उन्हें, लेट देम। मुझे, लेट मी। ओके, मैंने यहाँ पे लेट आई नहीं कहा, मैं यहाँ कह रही हूँ लेट मी। ओके, जो भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करके ही लेट के साथ यूज करेंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये जो लास्ट है लेट मी, वहां से हम शुरुआत करते हैं। मुझे बोलने दो। अभी यहाँ पे भी मैं परमिशन ले रही हूँ, बट वो इनफॉर्मल है। सो लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। मुझे अपना फोन चार्ज करने दो, लेट मी चार्ज माई फोन। मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर। गॉट द क्लैरिटी? Yes, ma'am. आपको लेट मी के बाद V1 का यूज करना है एंड देन ऑब्जेक्ट। नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू टेल सम एग्जांपल्स। हु विल टेल? मुझे बाहर जाना है तो let me go outside. राइट, मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउटसाइड। Let me the bath. ओके, अभी यहाँ पे लेट मी टेक बाथ।
और डायरेक्टली हम बात नहीं कह सकते लेट मी टेक बाथ, मुझे नहाने दो। Let me take a shower. Let me check the documents. वेरी गुड। लेट मी चेक द डॉक्यूमेंट्स, मुझे डॉक्यूमेंट चेक करने दो। Whenever you are telling a English sentence, make sure you also tell Hindi meaning. मुझे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक करने दो। डॉक्यूमेंट्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? नॉट मतलब इतना भी एग्जैक्ट नहीं चाहिए हिंदी ट्रांसलेशन। मैं आपको हिंदी या फिर मराठी ट्रांसलेशन बोलने के लिए बताती हूँ, बिकॉज मुझे चेक करना होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। सो अगर आपने कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी यूज किए तो चल जाएगा, नॉट एन इशू। अल्टीमेटली हमारा पर्पज है इंग्लिश इंप्रूवमेंट का। लेट मी के एग्जांपल्स अगर आपके हो गए तो हम अब डिस्कस करेंगे लेट देम। नीचे से हम ऊपर जाएंगे। लेट देम, देम मतलब उन्हें। ओके, THEM, देम मतलब उन्हें। अगर बहुत सारे लोग हैं उनके बारे में बात करनी है हमें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं लेट देम का यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल, उन्हें उनका काम करने दो, लेट देम डू देयर वर्क। उन्हें बाहर जाने दो, लेट देम गो आउट। उन्हें अंदर आने दो, लेट देम कम इनसाइड। और लेट देम कम इन, इस तरीके से आप लेट देम का यूज कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, आपको सिर्फ लेट देम के बाद कोई भी वर्ब लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर छोटे बच्चे हो गए तो आप कहोगे लेट देम प्ले, प्ले, उन्हें खेलने दो। इस तरीके से आप यहाँ पे वर्ब चेंज करो और फटाफट से एग्जाम्पल बताओ। देन हम आगे का अगला सेंटेंस लेंगे। संजना मैम, योर वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल टू मी, वुड यू माइंड रिपीटिंग इट अगेन, और यू कैन टाइप इन द chat box also. Let them go to village. Let them go to village. Okay, Divya is there in the session. Yeah, right. Correct, Divya. Let them do the work. Okay, Let them do the project activity. okay, right. Now we will move towards next sentence. Let her. Whenever you're talking about a girl, in that case, you can use her. For example, उसे पार्लर जाने दो, let her go to the parlor. उसे रंगोली निकालने दो, let her make रंगोली। इस तरीके से जब भी आपको एक लड़की के बारे में बात करनी होगी तो आपको हर यूज करना होगा। उसे रोने दो, लेट हर क्राई। उसे पढ़ने दो, लेट हर स्टडी। उसे अपना काम कंप्लीट करने दो, लेट हर कंप्लीट हर वर्क। उसे जीने दो, लेट हर लिव। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। गॉट इट? टेल मी सम एग्जांपल्स। Let her color the drawing. Color the picture. Okay, let her color the picture. We can use color here if she wants to fill the colors in the picture. Let her college project. Yes, Let her go to the shopping. very good. Let her go to the shopping. Let her go to the market. Let her go to the market, right? Wonderful. Let her do the makeup. Let her, Devani Let ma'am, her go to the. Yes, ma'am. I could not understand. Let her do the makeup. Wonderful, very उसे nice. मेकअप करने दो. Yes, right. I think other student was telling example. I think Sheetal ma'am was there. Let her draw rangoli. Rangoli. Hmm? Yes, the way, right. Let her draw to the picture. Okay. Now let's move towards let him. Whenever you're talking about a boy, in that case you will use let him. For example, let him play cricket. उसे क्रिकेट खेलने दो. Let him talk to her. उसे उससे बात करने दो. उसे उस लड़की से बात करने दो. Let him complete his education. उसे अपना एजुकेशन पूरा करने दो. Got it? Yes, ma'am.
Let him complete your homework. Okay, very good. Let me complete your homework. Let him ride the bicycle. Correct. Let him ride the bicycle. Now let's move towards us. Let us. Okay. Could you Let him read the books. let him read the books? Right. Now we will move towards let us. Us मतलब हम. हमें ये करने दो. Let us. Let us go out. हमें बाहर जाने दो. Let us talk. हमें बात करने दो. Got it? और let us का जो शॉर्ट फॉर्म है वो let's है. Let's. ओके. Let us का शॉर्ट फॉर्म है let's. Let's hurry up. ये सेंटेंस आपने सुना होगा. सुना है? Let's hurry up. Yes, ma'am. उसका मीनिंग आप Let बता us सकते go. हो? Let us go. Yes. Let's hurry up का मीनिंग? जल्दी करो. वेरी गुड. जल्दी करो. आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी नाउ. सो अभी आपके लिए एक टास्क है सभी के लिए. कुड यू प्लीज ओपन योर कैमरा? सभी को कैमरा ओपन करना है अभी. वेरी गुड. वैष्णवी मैम एंड संजना मैम. वेरी गुड. अभी आपका टास्क क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. लेट मी देम हिम हर अस, ये सारे आपको कवर करने हैं. ठीक है. सो मैं जब स्टार्ट कहूंगी तो आपको स्टार्ट करना है. कोई भी बता सकता है बट जब अगर दूसरा स्टूडेंट बात कर रहा है तो आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए. उसका खत्म होने के बाद अपना सेंटेंस बताना है आपको. ठीक है. ऐसे आप कितने भी सेंटेंस बता सकते हो. यू कैन टेल द एग्जाम्पल्स ऑफ लेट. Let me speak. मुझे बात करने दो. यस. वंडरफुल. Let us go there. हमें वहां जाने दो. वंडरफुल. Let me speak. मुझे बोलने दो. Let us go out. हमें बाहर जाने दो. फैंटास्टिक. Let's me go college. कॉलेज जाने दो. Let me take a bath. मुझे नहाने दो. वेरी गुड देवेनी मैम. Let them play. उन्हें खेलने दो. उन्हें खेलने दो. ओके. Let them do. उसे करने दो. Let him ride bicycle. उसे साइकिल चलाने दो. Let her do the makeup. उसे मेकअप करने दो. अमेजिंग. वेरी गुड मैम. यस. नेक्स्ट दिव्या. Let her live life. उसे जीने दो. राइट. Let her cry. उसे रोने दो. Let her sing a song. उसे गाना गाने दो. Let her make मेहंदी. उसे मेहंदी निकालने दो. Let him read the book. उसे बुक पढ़ने दो. Let her go to the market. उसे मार्केट जाने दो. Let him do the job. उसे जॉब करने दो. Let me check the reports. मुझे रिपोर्ट्स चेक करने दो. Let them come home. उन्हें घर आने दो. Let them complete homework. उसे पढ़ाई कंप्लीट करने दो. यस. वेरी गुड. Well done, students. I'm proud of you. You have become very smart now, and I don't have a word to appreciate your efforts. And thank you for your time and patience. I am so grateful to all of you for giving me your precious time. Now it's 12 past 11, and you're so committed to learning that you did not even leave the session. So I really appreciate that.